Good morning, student. This is your geography class, and today we are going to study about chapter number first, and that is geography as a discipline. Students, I have found some of notes of this chapter in the question answering form on the sides. So today we will understand this chapter through these question and answers. And first of all, I want to tell you that this unit is deal with the geography as a integrating discipline, and with the branch of the geography, what is the geography, and with the relationship between human and nature, and development of the geography, relationship between geography and other subject, geography, uh, relationship between the physical geography and the natural science, and some of question related to geography, and they are where, what and why. सो इस यूनिट के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन कैसे है, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ये कैसे इंटर रिलेटेड है, और ह्यूमन और नेचर के बीच में रिलेशन कैसा है, और ज्योग्राफी इसके बारे में क्या डिस्क्राइब करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Children, you have studied geography as the one of the component of your social science course up to the secondary stage, but now you will study geography as a independent subject and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship. Now, one question is raised, and that is why should we study the geography? पहला क्वेश्चन यही उठता है कि हमें geography क्यों पढ़ना चाहिए. So we should study the geography because we live on the earth's surface, and our life are affected many ways by our surrounding, and we depends on the resources available from the earth's surface, and primitive societies subsisted on the natural means of the subsistence, like plants and animals. Food, shelters and dresses are depending on the climate. आप सबने देखा होगा जहाँ जैसा क्लाइमेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, ड्रेसिंग्स और शेल्टर का पैटर्न होगा. आप कश्मीर में जाएं और आप एक साउथ में चले जाएं, आप अफ्रीका कंट्रीज़ में जाएं, एक आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ का जो टोटल एनवायरनमेंट होगा, कल्चर होगा, वो सब डिपेंड होगा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. एंड with the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. And we adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather condition, like cropping pattern is based on the climate of the place, and to know the changes taken place throughout the geological time, and to know the land and peoples. हर एक रीज़न में रहने वाले जो फिज़िकल फीचर्स हैं, लैंड जो फॉर्म्स हैं वो कैसे हैं, उसका क्या अफेक्ट हो रहा है, वहाँ का क्लाइमेटिक रीज़न क्या है, और वहाँ पर रहने वाले पीपल्स कैसे हैं पीपल. तो ये सब चीज़ें भी हमें ज्योग्राफी में ही पता चलती है. एंड टू डेवलप द स्किल टू कन्वर्ट द ग्लोब टू मैप. यस, you will develop skill to understand the globe, convert it into map and have to visual sense of the earth's surface. The understanding and the skill obtained in the modern scientific techniques such as GIS and computer. Yes, geography में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ से हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ आती हैं वो है GIS, द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS, अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एंड LIS, अ लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये जो तीनों ही पैटर्न हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ज्योग्राफी में यूज़ आती हैं, हमें अलग ज्योग्राफी का रीजन वाइज डाटा कलेक्ट करने और उसको एनालाइज करने के लिए. फर्स्ट इज़ द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS. इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट एनालाइज एंड डिस्प्लेज द ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड information, and it is used data that is attached to the unique location.
And second one is the GPS, a global positioning system. It is a network of the satellites and receiving the device used to determine the location of the something on the earth. किसी भी चीज़ की अर्थ पे क्या लोकेशन है उसको पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एंड थर्ड वन इज़ LIS, a land information system. It is a geographic information system for the land use mapping, typically used by the local government, which is focused on the management of the land. And one more is computer cartography. कंप्यूटर कार्टोग्राफी इज़ अ डिजिटल मैपिंग. ये डिजिटल मैपिंग है एंड इट इज़ नॉन एज द कार्टोग्राफी. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ कलेक्शन ऑफ द डाटा इज़ compiled and the formatted into the visual image. इसको किस में, विजुअल इमेज में जो डाटा है उसको विजुअल इमेज में शो किया जाता है. एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ टू प्रोड्यूस मैप दैट गिव एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. किसी भी पर्टिकुलर एरिया का एक्यूरेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें इसके थ्रू मिलता है. तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये ज्योग्राफी में न्यू है जो वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. व्हाट आर द रीसेंट टेक्निक्स दैट हेल्प द ज्योग्राफर टू अंडरस्टैंड द अर्थ सरफेस बेटर. तो ये जो तीनों टेक्निक्स जो मैंने आपको चार बताई हैं, GIS, GPS, LIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफर के लिए किसी भी एरिया के बारे में उसकी डिटेल एंड डाटा लेने के लिए. Next question is, next is what is geography? The earth consists of physical and cultural features. जो हमारी अर्थ है वो फिज़िकल और कल्चरल जो फीचर्स हैं उनसे बनी हुई है. हम कहें कि फ़िज़िकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर्स से बनी हुई है. इफ़ वी टॉक अबाउट द फिज़िकल फीचर्स देन वी see that the earth's surface is not uniform and it has variation in its physical features. There are mountains, hills, valleys, plains, plateaus, lakes, desert and so many other water bodies. So same thing in cultural features. There are variation in its social and cultural features also. There are villages, cities, roads, railways, ports, markets, and many other elements created by human beings across the entire period of their cultural development. So we can say that they are different from one place to another. This difference helps to understand the relationship between physical and cultural feature. Physical feature provided the stage on which human societies enacted the drama to develop their skill with the use of techniques and tool. यहाँ आप skill की जगह technique कर लीजिएगा. This is wrong. आप यहाँ टेक्निक करें. टेक्निक एंड टूल्स ही मॉडिफाइड द नेचर. जो ज्योग्राफी है अर्थ है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं या फीचर्स होते हैं, फिज़िकल फीचर्स एंड कल्चर फीचर्स. फिज़िकल फीचर्स आर नेचर मेड. जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, जो भी फिज़िकल फॉर्म्स हैं वो सारे फिज़िकल फीचर्स में काउंट होंगी. और कल्चर फीचर्स में मेन मेड जितनी भी एक्टिविटीज़ या जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे. ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए हुए जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे सोशल और कल्चरल फीचर्स में इंक्लूड होते हैं. और इन फिज़िकल फीचर और कल्चरल फीचर्स में
प्लेस टू प्लेस या अलग एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे भी होगा उनके अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंस होगा। एक प्लेस का कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट अलग होगा और वहीं अगर हम दूसरे रीजन का देखें तो वहाँ का फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अलग होगा। आपने राजस्थान का देखा है और आप कश्मीर का देखिए। राजस्थान में डेजर्ट वाला एरिया है, थोड़ा हॉट और एरिड एरिया है, और वहीं अगर आप कश्मीर में जाते हो तो कोल्ड एरिया, कोल्ड एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, सारा कूल। एंड यहाँ की वेजिटेशन में डिफरेंस होगा। उस अकॉर्डिंग यहाँ के पीपल्स के जो कलर और पीपल के जो कलर हैं उसके अंदर डिफरेंस होगा। हाइट वगैरह मेजरमेंट में, फीचर्स में डिफरेंस होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वहाँ जो क्लाइमेट होगा और हमारे यहाँ क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग में, हमारे फूड हैबिट्स में, इनमें भी चेंजेस होगा, वेजिटेशन में चेंजेस होगा। तो ये फिज़िकल एंड कल्चर जो एनवायरनमेंट होते हैं ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र होते हैं, दोनों में हमें चेंज देखने को मिलता है। ये फिज़िकल फीचर्स होते हैं, यही ह्यूमंस को अपने कल्चर फीचर्स को डेवलप करने के लिए एक स्पेस देते हैं या स्टेज देते हैं, और ह्यूमन अपनी टूल्स से, अपनी टेक्निक से उसको एनवायरनमेंट को, नेचर को मॉडिफाई करके उसमें अपने आप को एडजस्ट करता है। सो दिस इज़ द ज्योग्राफी। अगर हम इन सब की स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी। So in the very simple words, it can be said that the geography is a description of the earth. अर्थ में हम ज्योग्राफी में हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं।